Good morning, students. Yesterday, I was discussing about change of state. So, common state changes are melting. In melting, solid state is converted into liquid state. Vaporization means liquid की conversion into vapors. Fusion means liquid to solid. And sublimation, as you know, solid directly to vapors. Uh, solid carbon dioxide, which is also called dry ice, it directly changes from solid state to vapor state. Naphthalene and iodine are other examples in which substance will directly change from solid state to vapor state. Boiling point of a liquid increases with increase in pressure. At a normal temperature and pressure, water boils at 100 degrees centigrade. But if pressure is increased on the surface of water, then it will boil at higher temperature. Normal pressure is 1 atmosphere, and at this pressure water boils at 100 degrees centigrade. If pressure above the surface of water is increased to 2 atmosphere, then it will boil at 128 degrees centigrade. So, boiling point of liquid increases with increase in pressure. Uh, on the other hand, melting point of solid increases with increase in pressure provided solid expands on heating. नॉर्मली जो सब्सटेंस हैं वो हीट करने पे एक्सपेंड करते हैं। जैसे ही प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। बट देयर आर सर्टेन सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। एग्जाम्पल्स आर वाटर, कास्ट आयरन एंड बिस्मथ। दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। जैसे वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दिस इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कास्ट आयरन भी हीट करके कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसे जो हमारे सॉलिड्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हीट करने पे, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। Now let us see what happens to the change of state of ice when it is heated. You take pieces of cubes of ice in a beaker. Heat it. Before heating, measure temperature. The temperature recorded by thermometer will be 0 degree centigrade. So gradually heat ice and measure temperature after every minute and plot a graph. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था शुरू में, 0 टाइम पे, मिनट में है टाइम। हीट किया, 1 मिनट हीट करते हुए हो गया, कुछ आइस क्यूब्स मेल्ट कर जाएंगे, आइस क्यूब्स मेल्ट करते जाएंगे और पानी बनता जाएगा। 1 मिनट बाद जो है कुछ आइस मेल्ट कर गई, पानी बन गया, बट टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय थर्मामीटर रिमेन 0 डिग्री। 2 मिनट बाद थोड़ी सी आइस और मेल्ट हो गई और टेम्परेचर फिर से 0 डिग्री। 3 मिनट के बाद सारी आइस मेल्ट कर गई और पानी में बदल गई सारी, तो टेम्परेचर अगेन 0। सो ये जो हम हीट दे रहे हैं, that heat is used to change state of ice from solid to liquid. There will be no increase in temperature for first 3 minutes, एंड 3 मिनट तक इस बीकर में आइस क्यूब्स भी होंगे और लिक्विड भी होगा, मीन्स पानी भी होगा, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।
So we can say solid and liquid will be in thermal equilibrium. Both of them will coexist in thermal equilibrium and temperature नहीं बढ़ेगा। वो हीट जो हमने स्टेट को चेंज करने में खर्च करी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। It is called latent heat of fusion. Now, it is not used to increase temperature, it is used to change state of substance from solid to liquid. फिर आफ्टर अनदर 1 मिनट टेम्परेचर अब बढ़ने लगा, 20 डिग्री हो गया, 5 मिनट के बाद 40, सो ऑन, और आफ्टर 8 मिनट ये 100 डिग्री। 100 डिग्री पे इसमें वेपर्स भी होंगे, तो लिक्विड जो है किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में। तो बीकर में पानी भी है और इसके सरफेस के ऊपर वेपर्स भी हैं। अब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। आप यू कीप ऑन हीटिंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल डिक्रीज, धीरे धीरे इस बीकर में पानी कम होता जाएगा और वो पानी जो है वेपर स्टेट में चेंज होता जाएगा। So again at 100 degree centigrade, liquids and vapor will coexist in thermal equilibrium. There will be again no change in state temperature. So the heat is used to change the state from liquid to vapors. The heat used for this state change is called latent heat of vaporization. Now, then next we have definition of latent heat. Latent heat is the heat required to change state of unit mass, लेंगे हम यहाँ preferably unit mass of substance at constant temperature and pressure. Here temperature remains constant, state is being changed from solid to liquid, और हम ये ले लेंगे कि this is 1 kg। तो 1 kg आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसका हमने बनाना है वाटर, और उस वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। वो हीट जो खर्च हुई एक 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एफ sub stand for fusion, amount of heat required to change state of unit mass of a substance from solid to liquid at constant temperature, या you can say at melting point. Then latent heat of vaporization, take 1 kg water in beaker, say its temperature is 100 degree centigrade, it is boiling, heat it, volume of water will decrease, धीरे धीरे इस कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ वाटर विल डिक्रीज, वो स्टीम में कन्वर्ट या वेपर स्टेट में जाता कन्वर्ट होता जाएगा। तो हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली चेंज स्टेट ऑफ दिस यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड एट बॉइलिंग पॉइंट into vapors is called latent heat of vaporization. For water, latent heat of vaporization ये रही 22.6 into 10⁵ जूल पर kg, मीन्स 1 किलो की स्टेट को चेंज करना हो तो इतनी हीट देनी पड़ेगी। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, इट इज़ 3.3 into 10⁵ जूल पर kg, मीन्स 3.3 इंटू 10⁵ जूल हीट चाहिए होगी 1 किलो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो व्हेन 1 kg स्टीम विल कंडेंस, ये वेपर जो है अगर ये वेपर्स कंडेंस कर जाएं और इनका लिक्विड बन जाए, पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में कन्वर्ट किया, तो उसके लिए हीट खर्च करी। अगर ये 100 डिग्री पे जो वेपर्स हैं, वेपर्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अगर कंडेंस करते हैं स्टीम में तो दे विल लूज हीट। 100 डिग्री वाटर वेपर्स में जाएगा, इट विल एब्जॉर्ब हीट।
हीट करना पड़ेगा, तब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है स्टीम में कन्वर्ट होगा। और स्टीम या वेपर जो है 100 डिग्री से जब 100 डिग्री वाटर में चेंज होंगे, दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड इन दिस प्रोसेस दे विल रिलीज हीट, जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतनी रिलीज करेंगे, और वो जो पानी बनेगा उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। So it is due to this reason that steam burns are more serious than ones from boiling water, even both are at same temperature. स्टीम 100 डिग्री वाटर में आएगी, 100 डिग्री स्टीम 100 डिग्री वाटर में आएगी, इट विल लूज़ एनर्जी। तो एक तो एनर्जी ये बहुत सारी एनर्जी लूज़ करेगी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर्स जो हैं वो 100 डिग्री वाटर पे आएंगे। सो दे विल लूज़ हीट, इसलिए हमारी स्किन के बर्न जो हैं ज़्यादा सिवियर होंगे। देन नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेटेंट हीट। 1 किलो के लिए वी नीड L अमाउंट ऑफ हीट, M किलो के लिए वी विल नीड M into L. This is the heat required to change state of m kg of mass, where L is latent heat. चलिए मान लिया हम we need 3.3 into 10⁵ जूल हीट 1 किलो आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 किलो के लिए कितनी चाहिए होगी, मल्टीप्लाइड बाय 2। सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो 1 किलो के लिए इतनी चाहिए, m किलो के लिए वी विल रिक्वायर m into LF। नो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेटेंट हीट। फर्स्ट ऑन specific heat, then on latent heat. We have a sphere of aluminum of 0.047 kg. It is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water, so that the temperature of aluminum sphere is 100 degrees centigrade. It is then immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg of water at 20 degrees centigrade. Temperature of water rises and attain a steady state of 23 degrees centigrade. Calculate specific heat of aluminum. हमारे पास ये वाटर है, दिस इज कैलोरीमीटर मेड ऑफ कॉपर, दिस इज कैलोरीमीटर, इट कंटेन्स सम वाटर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमने एक एल्युमिनियम का स्फीयर डाल दिया, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये एल्युमिनियम का स्फीयर जब हम वाटर में डालेंगे, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जब इसमें डालेंगे तो एल्युमिनियम स्फीयर विल लूज हीट, एंड दैट हीट लॉस विल बी गेन बाय वाटर इन द कैलोरीमीटर। और ये जो हमारा कैलोरीमीटर है, क्योंकि अगर वाटर का टेम्परेचर 20 है तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 20, वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ के 23 हो जाएगा तो कैलोरीमीटर भी गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी 23। सो वी कैन से हीट लॉस्ट बाय दिस एल्युमिनियम स्फीयर इज गेन्ड बाय वाटर एंड बाय कैलोरीमीटर। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर इज 23 degrees centigrade. This is final temperature, this is initial before we drop this aluminum sphere into water. Initial temperature 20, final 23. So calculate specific heat of aluminum. So mass of aluminum sphere is given. फॉल इन टेम्परेचर ऑफ एलुमिनियम, जब भी ये एलुमिनियम इसमें गिर जाएगा तो इसका टेम्परेचर इट विल बिकम 23।
एल्युमिनियम हीट लूज करता जाएगा, वाटर गेन करता जाएगा। वाटर का टेम्परेचर 23 स्टेडी स्टेट में, तो जो इसमें एल्युमिनियम की बॉल है इसका टेम्परेचर भी फाइनली 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सो फॉल इन टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम बॉल इज 100 माइनस 23, इट इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट लॉस्ट बाय एल्युमिनियम इज गिवन बाय दिस। वी नो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मैंने बताया था आपको C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। इफ़ दिस इज़ राइज इन टेम्परेचर तो ये है हीट एब्जॉर्ब, इफ़ इट इज़ फॉल इन टेम्परेचर देन इट इज़ हीट लॉस्ट। तो हीट लॉस्ट बाय एल्युमिनियम ये होगा फॉल इन टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम। मास ऑफ एल्युमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम एंड डेल्टा टी फॉल इन टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम। राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर डेल्टा टी, पहले 20 था फिर 23 हो गया, सो इट इज़ 3 डिग्री इंक्रीज। हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, इट इज़ डेल्टा क्यू। सो ये है हीट गेन बाय वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर जो कि 3 डिग्री है। ये है मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है, इनटू राइज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, ये भी 3 डिग्री होगा। वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर दोनों का 3 डिग्री इंक्रीज। दिस इज मास ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर, ये दी हुई है स्पेसिफिक हीट, एंड डेल्टा टी इज 3 डिग्री। मास ऑफ कैलोरीमीटर इज गिवन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इज ऑल्सो गिवन, ये है, एंड डेल्टा टी 3 डिग्री। सो according to principle of calorimetry, heat lost is equal to heat gain. So heat lost by aluminium should be equal to heat gained by the calorimeter and water. So substitute value delta Q aluminium ये रहा हमारा, this is equal to delta Q ये, and we can calculate value of specific heat of aluminium, ये इतनी आ जाएगी। Now then next numerical based on latent heat. Calculate the heat required to convert 3 kg of ice at minus 12 degree centigrade kept in a calorimeter to steam at 100 degree centigrade at atmospheric pressure. तो mass of ice is given. पहले तो हम आइस को हीट करेंगे -12 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस ही रहेगी। -12 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री आइस तक गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए, आई टोल्ड यू डेल्टा क्यू इज़ MC इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ये है मास ऑफ आइस, ये आ जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये राइज इन टेम्परेचर ऑफ आइस। सो लेट दिस हीट रिक्वायर्ड इज Q1, heat required to convert ice at -12 degree centigrade to ice at 0 degree centigrade. Mass of ice 3 kg. Specific heat of ice it is given 2100 joule per kg per degree centigrade. Rise in temperature of ice 0, फाइनल टेम्परेचर 0 हो गया, माइनस इनिशियल टेम्परेचर -12 था तो ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतने जूल आ गई ना। अब हमने 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है। स्टेट चेंज के लिए जो हीट चाहिए, वी नो ये हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट 0 डिग्री टू वाटर एट 0 डिग्री, इट इज़ 1 किलो के लिए LF चाहिए तो M किलो के लिए M इंटू LF, F स्टैंड्स फॉर फ्यूज़न। तो मास ऑफ आइस एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस, kg और kg कट गया, ये आ गई हमारी। देन हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 0 डिग्री टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हीट को हुआ है। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड से Q3, M मास ऑफ वाटर, जो वाटर बनेगा उसका भार भी 1 किलो ही होगा, आइस 1 किलो थी तो पानी जो बनेगा उसका भार भी 1 किलो, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, 0 से 100 करेंगे तो 100 डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर। तो मास ऑफ वाटर 3 kg, स्पेसिफिक हीट वाटर की आइस से ज़्यादा है, इसकी 2100 थी, इसकी 4186, ऑन कैलकुलेशन Q3 आ गया ना। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है, बॉइलिंग वाटर,
उस सारे को हमने जो 3 किलो पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको 3 किलो वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है. फॉर दैट वी अगेन नीड हीट, दैट इज m इंटू एल बी. ए किलो के लिए एल सब्सक्रिप्ट बी, बी स्टैंड फॉर वेपराइजेशन, तो m किलो के लिए m इंटू एल बी चाहिए. तो मास ऑफ लिक्विड या वाटर 3 किलो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज दिस, ये आ गया. सो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज आइस एट -12 डिग्री टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको सबको ऐड कर दीजिए. इट इज इक्वल टू दिस. नाउ देन नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. Newton's law of cooling states that the rate of loss of heat by a body is directly proportional to temperature difference between body and the surrounding, provided it is small. जैसे हमारे पास दिस इज कॉफ़ी, इट इज़ हॉट कॉफ़ी, इट्स टेम्परेचर इज से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड समर. आफ्टर सम टाइम कॉफ़ी जो है इट विल अटेन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठंडी हो जाएगी और इसका टेम्परेचर भी सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा. सो इट इज़ लूजिंग हीट, इट इज़ लूजिंग हीट. 1 सेकेंड में जो कॉफ़ी ने हीट लूज करी, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. dt सेकेंड में कॉफ़ी ने dq अमाउंट ऑफ हीट लूज करी. 1 सेकेंड में कॉफ़ी ने जो हीट लूज करी ये है. सो इट डिनोट्स रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मीन्स हीट लॉस बाय कॉफ़ी इन 1 सेकेंड. टेम्परेचर डिफरेंस, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये कॉफ़ी का टेम्परेचर है 20 डिग्री. तो अगर 20 डिग्री तक डिफरेंस हो तो न्यूटन लॉ लगेगा. अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगेगा. सो ये टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग और कॉफ़ी के बीच में कम है, ओनली देन न्यूटन लॉ इज एप्लीकेबल. So according to Newton law, this rate of loss of heat by a body is directly proportional to difference of temperature between coffee and surrounding. This is Newton's law of cooling. Now let us write it in different forms. We can also write it minus some constant of proportionality T minus T naught. So where minus sign shows कि this temperature difference will go on decreasing. कॉफ़ी का टेम्परेचर इनिशियली 60, सराउंडिंग एयर का 40, तो शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस इट वॉज 20 डिग्री सेंटीग्रेड. थोड़ी देर बाद कॉफ़ी का टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड, एयर का टेम्परेचर 40 ही रहा, सो इट इज़ नाउ 18. तो पहले 20 था, फिर 18 हो जाएगा डिफरेंस, फिर 16 हो जाएगा और फाइनली इट विल बिकम 0. So this minus sign shows कि the temperature difference goes on decreasing. Now this K is constant of proportionality. It depends on nature of surface and excuse me, it depends on nature of surface and surface area. अगर कॉफ़ी को बड़े कप में डालेंगे, बड़े बर्तन में डालेंगे, पतीले में डालेंगे, जग में डालेंगे, जल्दी ठंडी हो जाएगी, बिकॉज एरिया ऑफ कंटेनर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी बढ़ जाएगी. सो के की वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस विच इज़ लूजिंग हीट, एंड नंबर 2 एरिया ऑफ container which is losing heat. Then we also know amount of heat lost by coffee is equal to specific heat of coffee, mass of coffee, fall in temperature of coffee. If it is fall in temperature, this is heat lost by the coffee.
इफ़ इट इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर तो उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी. सो इफ़ इट इज़ राइज इन टेम्परेचर यह होगा हीट एब्जॉर्ब. इफ़ इट इज़ फॉल इन टेम्परेचर तो हीट लॉस्ट. तो यार कॉफ़ी विल लूज हीट, इट्स टेम्परेचर विल फॉल. तो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट लूज करी कॉफ़ी ने डी टी टाइम में. 1 सेकेंड में कितनी लूज करी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डी टी. सी एम डी टी बाय डी टी. So this is decrease in temperature in 1 second. This not temperature, chota t time. It is rate of loss of heat is equal to Cm and dt by dt. dt is temperature difference, fall in temperature of coffee and time dt. तो यहाँ इन दोनों को आप इक्वेट कीजिए. So on equating these two, we get ये आ जाएगा हमारे पास के टी माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो यू विल गेट दिस. नाउ देन we have minus k t minus t naught is equal to सी एम डी टी बाई डी टी. ये जो आपका सी एम है इसको के नीचे ले आइए तो ये आ जाएगा हमारे पास. यहाँ से सी एम को इधर ले आए. इट बिकम्स न्यू कांस्टेंट. ये भी कांस्टेंट है स्मॉल के, दिस इज स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल एम. लेट अस सपोज इनको डिवाइड करके और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से वी गेट कैपिटल के. सो इट इज़ कैपिटल के माइनस कैपिटल के T minus T naught dt by dt. So this is fall in temperature of body in 1 second. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, एक तो आप इसको पहले इधर टेम्परेचर वाली टर्म्स इधर ले आए. ये डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, टी माइनस टी नॉट इधर लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में आ गया. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस के टी. डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. देन वी कैन रीराइट इट. लॉ को हटाना हो तो क्या होगा, ये बेस ई, ये टी माइनस टी नॉट इधर चला जाएगा और ये सारी चीज़ ई की पावर बन जाएगी. सो ये आ गया हमारे पास. वी कैन रीराइट इट ई रेज पावर माइनस के टी इंटू ई रेज पावर सी टी माइनस टी नॉट. E इज़ 2.7. इसकी पावर कुछ होगी तो कोई कांस्टेंट आएगा तो लेट दैट कांस्टेंट इज C. तो इट इज़ T माइनस टी नॉट इन इक्वल टू C इंटू दिस. वी कैन रीराइट इस टी नॉट को इधर ले आइए आप, ये आ गया हमारे पास. नाउ वी कैन प्लॉट सम ग्राफ्स. T माइनस टी नॉट, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज T माइनस टी नॉट एंड दिस इज ई रेज पावर माइनस के टी. टी बढ़ेगा, दिस टेम्परेचर डिफरेंस विल डिक्रीज. सो दिस द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ये रहा. एंड ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इफ यू रिमेंबर, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो हेयर टी इज़ वेरिएबल, स्मॉल टी टाइम, ये एक्स की जगह स्मॉल टी है. स्लोप एम की जगह माइनस के, नेगेटिव स्लोप है इसकी. तो ये वेरिएबल लॉग टी माइनस टी नॉट टू द बेस ई, ये बाई. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप नेगेटिव के. नाउ इन न्यूमेरिकल ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. A body cools in 7 minutes from 60 degree to 40 degree. What will be its temperature after next 7 minutes? Temperature of surroundings is 10 degree centigrade. We know according to Newton, rate of loss of heat is equal to this. Again we know heat lost by water, यहाँ पे water है हमारे पास, body है सॉरी, heat lost by body is equal to this. ये डी टी से डिवाइड कर दें, ये आ गया हीट लॉस बाय बॉडी इन 1 सेकेंड. दिस इज इक्वल टू दिस. इक्वेट करेंगे, ये आ जाएगा. नाउ दिस इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. बट यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है.
बॉडी का ये दिस इज़ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जैसे कॉफ़ी का टेम्परेचर था जो कि मैंने 60 डिग्री लिया था। तो हेयर ये कह रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर 60 नहीं है, 60 से 40 घट गया 7 मिनट में। तो ऐसे केसेस में हम बॉडी का टेम्परेचर जो है जब ऐसे दिया हो तो हम मीन ले लेंगे 60 + 40 अपॉन 2 50 डिग्री। तो हम लेंगे कि बॉडी इज़ एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो this is temperature of body, this is temperature of surrounding, this is initial temperature of body, this is final temperature of body। तो बॉडी का टेम्परेचर जो है एज आई टोल्ड यू, ये टी टेम्परेचर जो है इट विल बी मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। सो दिस टेम्परेचर ये जो है बॉडी का T1 + T2 अपॉन 2, ये आ गया हमारा T1 इज 60, दिस इज 40 अपॉन 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ एयर सराउंडिंग MC T1 माइनस T2। T1 60 डिग्री था, T2 40, टाइम 7 मिनट मीन्स 420। MC बिल्कुल वैसे ही बॉडी का मास एंड बॉडी की स्पेसिफिक हीट, दिस इज कॉन्सेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फ्रॉम हेयर यू विल गेट ऑन सिंप्लीफाइंग इट, ये आ जाएगा हमारे पास 40 के इक्वल टू दिस। तो यहाँ से MC और C की वैल्यू आ जाएगी। फिर बॉडी का टेम्परेचर अब 40 से अगले 7 मिनट में 40 डिग्री से घट के मान लिया T2 हो गया। तो इसमें हम बॉडी का मेन टेम्परेचर फिर ये आ जाएगा T2 अपॉन 2, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो हम लेंगे। सो नो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 40 + T2/2। T2 अब इसका 14 मिनट के बाद, 14 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है वो है T2। नो -10 MC बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर इट इज़ 40 माइनस T2 अपॉन फिर से 7 मिनट मीन्स 420। सो डिवाइड इक्वेशन 4/3 एंड सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट T2 इज इक्वल टू 28। तो पहले 7 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री से 40 डिग्री हो गया, और अगले 7 मिनट में इसका टेम्परेचर 20 डिग्री नहीं घटेगा, 28 होगा, मीन्स 12 डिग्री घटेगा अनदर इन नेक्स्ट 7 मिनट। So that's all in this lecture. Thank you for watching.